minute. Abhi record. Yeah. Okay, sir. Sorry. Yeah. Now only recording. Acha, you are appearing for RRB interview. Which RRB? Sir, Maharashtra Gramin Bank and Vidarbha Kokan Gramin Bank. Very good. Maharashtra. Maharashtra. Good. Excellent. So please, आप हिंदी में बोलना चाहते हैं और अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं इंटरव्यू? Sir, I will continue in English, sir. मैं इंग्लिश में करना चाहूँगा. Very good. Please tell me about yourself. First of all, thank you, sir, giving me opportunity to introduce myself. My name is Shubham Bandu Sejur. I am from Aurangabad, Maharashtra, and I have done my schooling till PG from Aurangabad, Maharashtra. In my family, I have there are 4 persons. My father is a painter, and my mother is a housewife. My younger brother is pursuing MBA now, and after completing my PG, I am preparing for competitive exams from December 2020 itself. Good. Thank you, sir. Did you appear for an interview in any other bank? No, sir, not yet. It is my first interview, sir. Very good. आपने ग्रेजुएशन क्या किया बोला, बताइए. ग्रेजुएशन सर मैंने MSc किया है सर केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री. अच्छा, गुड. यस सर. वेरी गुड. केमिस्ट्री का बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है. केमिस्ट्री का पास में पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है? यस सर, आपने दिया हुआ मटेरियल पढ़ा हुआ है. मटेरियल पढ़ा है. अच्छा, Yes. वेरी गुड. दैट्स गुड. अच्छा जी, व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? Actually, sir, inorganic chemistry is a branch of chemistry in which we deal with the compounds related to carbon and bonding another covalent atoms with the carbon, and we did different processes in inorganic chemistry related to that products. Explain what is buffer. Buffer. Sorry, sir, I'm unable to recall. I will look into it, sir. A buffer is an aqueous solution which has highly stable pH. It is a blend of a weak acid and its conjugate base or vice versa. On adding a small amount of base or acid to buffer, its pH oddly changes. ये सब जो मटेरियल आपको दिया है इसमें है. Yes, sir, I have read it, but I'm unable to recall it now, sir. I will look into it, sir, surely. थोड़ा केमिस्ट्री का और एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए. चाहिए तो आप क्या Okay, sir. करेगा, आपने गूगल में जाएगा, google.com में जाएगा, केमिस्ट्री Okay. रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसा डाल दीजिए. आप ऐसा डालने से आपको ऐसा में क्वेश्चंस आएगा. फॉर एग्जांपल ऐसा में आएगा, why did you decide Okay, on sir. this way, but what is your greatest strength, what do you consider as greatest weakness, and all? What are some good chemistry questions? Or two atoms of the same element identical? Are you seeing it on the screen? Yes, sir, I'm able to see. So likewise आप सर्च करके जो कुछ आ रहा है क्वेश्चंस पढ़ लीजिए. इसका अलावा Okay, sir. आपको किस तारीख इंटरव्यू है? सर 16 तारीख को है. अच्छा, थोड़ा समय है. आप विजडम जॉब्स में भी जा सकते हैं. केमिस्ट्री सर्च करने से आपको मिलेगा. ठीक है सर, मैं चेक कर लूंगा. अच्छा, you will do it. Surely, sir. Very Oh, sir. good. Excellent. 1 minute. Good. We will go into the next one. Yeah. So now please tell me, what is your father? Sir, he is a painter, sir. He does painting works. अच्छा. पेंटिंग. Yes, sir. पेंटिंग में क्या क्या पेंट्स अच्छा चलता है इंडिया में? Sir, actually, Asian Paints है, Nerolac Paints है, and other Dulux Paints and other brands are there, sir. वो सब ब्रांड्स चलते हैं इंडिया में. वेरी गुड. आप कभी आपको पिताजी को हेल्प किया है उनका बिजनेस में? हाँ सर, कभी कभी कर लेता हूँ. जब काम ज्यादा हो जाता है तो मैं जाता हूँ और करता हूँ हेल्प, सर. You also try to paint and all that, correct? हाँ सर, मैं ट्राई करता हूँ. Very good. Excellent. Good.
You must do work so that you help your daddy also. आपको आरआरबी के बारे में क्या जानते हैं आप? सर आरआर बीच को नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन से बनाया गया था 1975 में। और इनको इसलिए बनाया गया था कि प्रो पुअर और रूरल फोकस करके कि रूरल की डेवलपमेंट हो और एग्रीकल्चर और फार्मर्स को हम लोन प्रोवाइड कर सके ताकि वो अच्छी तरह से एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट्स ले सके और उन्नति कर सके सर, इसलिए आरआर बीच को बनाया गया था। गुड। महाराष्ट्र में किस जगह पर आप रहते हैं अभी? हम्म। सर मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहता हूँ सर। अच्छा अच्छा, औरंगाबाद। औरंगाबाद में क्या चीज ज्यादा बना रहे हैं? व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन मोर? सर औरंगाबाद में सर हमारे यहाँ कॉटन ज्यादा बनता है और बाजरा भी है, ज्वार भी है। और सर ज्यादा करके हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट मशहूर है सर वो हेमरू शाल है और पैठनी भी बनता है सर इधर। वेरी गुड। अच्छा जी, ये बताओ, कॉटन कल्टीवेशन के लिए कितना समय लगेगा? एक्चुअली सर कॉटन कल्टीवेशन के लिए 4 to मेरी इंफॉर्मेशन की गुना पे थोड़ा 4 से 5 महीने लगता है सर। थोड़ा इसका बारे में पूछ लीजिएगा। जो 2-3 आइटम्स आप बता रहे हैं उसका बारे में ओके सर। विकिपीडिया में जाइएगा, नहीं होने से किसी फार्मर से पूछ लीजिएगा, आपको पता हो जाएगा। ओके सर। अच्छा जी, जी सर। महाराष्ट्र में कितना कोप आरआरबीस है? सर 2 आरआरबीज है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक। विच इज स्पॉन्सरिंग बैंक? एक्चुअली सर महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है उसके लिए महाराष्ट्र बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वो स्पॉन्सर करता है। और जो विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक है उसके लिए बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करता है सर। अच्छा, वेरी गुड। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चेयरमैन का नाम क्या है? सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन का नाम है मिस्टर मिलिंद गरड सर। गुड। बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन? बैंक ऑफ इंडिया सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी, मैं कोई बात लिखूंगा कोई सर बात उसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। गुड। अच्छा जी, आपका किस बैंक में अकाउंट है? सर मेरा एसबीआई में अकाउंट है सर, वेरी गुड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गुड। What are the various services rendered by RRBs? सर आरआरबी पहली बात तो सर डिपॉजिट्स लेते हैं और लोन्स लोन्स तो वो प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली वो फार्मर्स को और जो स्मॉल बिजनेसेस है उन्हें लोन्स प्रोवाइड करते हैं। और वो किसान क्रेडिट कार्ड की सर्विस बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं जिससे फार्मर्स को हेल्प मिलती है। Good. किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? सर किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो किसानों को बैंक्स प्रोवाइड करती है जिससे किसान उनके खाद के लिए और जो भी उन्हें बीज और वो चाहिए उसके लिए वो क्रेडिट ले सकते हैं, या घर के खर्चे के लिए भी। और अगर हेल्थ इमरजेंसी हो तो भी वो क्रेडिट ले सकते हैं। और फसल को बेचने के बाद उसे वो पे कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है उससे। 5 years, the same, it will be renewed also. Good, good, good. अच्छा, what are थैंक यू the सर। services rendered? इसमें आपने ये भी बता सकते हैं, कई कई ब्रांचेस में आपको लॉकर्स भी मिलता लॉकर्स। है और डिजिटल सर्विसेज भी देते हैं और बैंक अश्योरेंस भी करते हैं। आप देख लीजिए, आपका जी दोनों सर बिल्कुल आरआरबी पढ़ में लूंगा। होता तो वो बोल दीजिएगा। अच्छा जी। ठीक है सर मैं देख लूंगा। या हाउसिंग लोन में प्रायोरिटी सेक्टर बनाने के लिए कितना तक लोन दे सकते हैं? लिमिट सॉरी सर लिमिट मुझे पता नहीं है, मैं देख लूंगा सर। 35 lakhs for urban ओके सर। areas and metropolitan. सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया में 25 lakhs। ठीक है। ठीक है सर मैं देख लूंगा फिर से। अच्छा, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर का बारे में पढ़ा है? हाँ सर थोड़ा बहुत पढ़ा है। बोलिए, क्या क्या जानते हैं? सर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग एक ऐसा रूल्स है और नॉर्म्स है आरबीआई ने बनाए हैं, जिसके तहत बैंक्स को कुछ जो लोन्स वो देते हैं वो कुछ सेक्टर्स को देने पड़ते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स को उन्हें देना पड़ता है, स्मॉल बिजनेसेस को देना पड़ता है,
और कुछ लोन्स जो है वो SC ST एंड माइनॉरिटी सेक्टर्स को भी देना पड़ता है। और उसको सर उनके नेट डिमांड एंड टाइप नो नो लाइबिलिटी से एस इस सी करके। एस टी एस सी एस टी इधर में नहीं आएगा। एस सी हाँ एस सर, टी वो इधर मुद्रा लोन में आएगा, सॉरी सर। हाँ। इधर में नहीं आएगा। ओके ओके, सर। डजंट मैटर, उसको थोड़ा और भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, आपने पूछने से सब फील्ड टिक से बताना है। एजुकेशन, हाउसिंग, एक्सपोर्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एमएसएमई, रिन्यूएबल एनर्जी, ओके एग्रीकल्चर, सर, चले। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पढ़ना है ठीक से। ठीक है सर, पढ़ लूंगा मैं फिर से। PMJDY, कुछ बात बताइए उसका बारे में। सर, प्रधानमंत्री जन धन योजना एक ऐसा अकाउंट है जो 2014 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसके अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो गरीब और जो डाउन टोडन पीपल है उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाता है। और यहाँ पे सर हमें इंश्योरेंस भी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, एक मिनिमम अमाउंट जब हम देते हैं। और प्लस जो डिपॉजिट्स है उन्हें सिक्योर भी किया गया है। और हम मिनिमम अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट का ऐसा कुछ दिया नहीं गया है कि आप इतने अमाउंट अकाउंट में आपको रखना ही है। और एक बात ऐसी सर कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी वहाँ पे दी गई है। पहले 5,000 थी, अब वो लिमिट शायद 10,000 तक की गई है। गुड, ये सब फैसिलिटीज है सर। वेरी गुड। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसका मतलब क्या है? सर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक ऐसे गवर्नमेंट की योजना हम बोल सकते हैं सर, जिससे जो गवर्नमेंट फंडिंग करती है या फिर जो सपोर्ट देती है किसानों को या फिर अदर सेक्टर्स को, वो सीधा सीधा उनके अकाउंट में चला जाता है सर। उसको कैश में लेन देन करने की जरूरत ही नहीं है। गुड। Can you tell me what are the uses of computers in banking? Actually, sir, after coming of computers, banking has changed significantly because if one wants to do the transactions, the computer helps bank employees in doing the transaction in really less time. And also keeping records, it's a computer also helps in keeping records and doing some uh, works like Excel sheets also help them in doing works, and calculation is also easier when we have computers with us. You can also say computerization is used in ATM, and also say in digit mobile banking वगैरह वगैरह everywhere. Okay, ओके सर, ठीक है सर, चलेगा। good. अभी 2025 और 2030 में बैंकिंग कैसे लगेगा? What will be the position of banks, RRBs, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये सबका पोजीशन कैसे रहेगा? क्या चीज अच्छा बनाएगा? इसके बारे में आपको मन क्या बोलता है? तो सर, मेरा ये मानना है कि सर बैंकिंग सेक्टर जो है वो डायनामिक सेक्टर है और ये दिन ब दिन चेंज होते जाता है। मुझे सबसे पसंद बात है सर जो बैंकिंग सेक्टर में है कि वो टेक्नोलॉजी को अपडेट कर देता है और उसे हमेशा ग्रास्प करने की कोशिश करता है, जिससे सर मैं देख रहा हूँ कि 25 और 2030 के दरमियान सर बैंकिंग सेक्टर जो है वो टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर लेगा। और जो हम अभी देख रहे डिजिटल इंडिया, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो बहुत अच्छी तरह से बैंकिंग सेक्टर में शायद रोल आउट हो जाए। और जैसा जिससे हम देख रहे हैं सर, अभी अभी RBI ने डिजिटल करेंसी भी लॉन्च किया है, तो उससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट बैंकिंग सेक्टर को 2025 और 30 तक मिल सकता है सर। और ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और RRB सर उनमें टॉप भी कर सकती है, क्योंकि रूरल सेक्टर में फाइनेंशियल इंक्लूजन अब प्रधानमंत्री जन धन योजना से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। But 10 तारीख नवंबर 2022, आज होने वाला इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट क्या है? सर, आज इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट मुझे जो पता है सर, उसमें भारत और इंग्लैंड का जो T20 मैच है, जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें सेमीफाइनल होने वाला है सर। मुझे अभी तक इतना ही याद गुड। हैव यू हर्ड अबाउट मिस्टर जमशेद ईरानी? कभी सुना है? है। जमशेद ईरानी सर, मैं प्रयास कर सकता हूँ सर, कि वो शायद लग रहा है सर वो बिजनेसमैन है।
अभी उनका बारे में क्यों न्यूज़ में नाम आया? सॉरी सर, देखो, मुझे पता नहीं है, मैं देख लूंगा सर, इसे चेक he करता हूँ। he died. He died. He was considered as steel man of India. Steel ओके man सर, of ठीक है सर, India. मैं देख लूंगा, पढ़ Very लेता good. हूँ सर इसके बारे सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब सेलिब्रेट होता है? में। सेंट्रल सर विजिलेंस अवेयरनेस 26 वीक। हाँ, 26 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच सर, शायद। करेक्ट। 31st October. 31 अक्टूबर, ओके सर, सॉरी। Good. You told correctly. No problem. सुना है ईला भट्ट, he died, she died recently. She is known for contribution in which area? इला भट्ट, सॉरी सर, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, हाँ, मैं पढ़ She लूंगा was सर उसके she बारे was a social activist. She में। was a ओके सर। social. Abhi, who is the Chief Justice of India? सर अभी तक यू ललित से सर, और कल ही डॉक्टर टी वाई चंद्रचूड़ ने ले लिया है सर सीजीआई, अभी वो अपने सीजीआई नहीं है, डॉक्टर टी वाई Abhi, चंद्रचूड़। Abhi, we have to tell the name of Chandrachud only. Correct? चंद्रचूड़ सर, राइट सर, राइट। Very good. 1 minute. Hmm, कुछ नया चीज पढ़ा है करंट अफेयर का बारे में? आप बोल सकते हैं हमको, वट एवर कम्स टू योर माइंड, करंट अफेयर का बारे में, वट एवर स्टेज इन ओके। योर माइंड उसको बता दीजिए। एक्चुअली सर, अभी अभी यूएस में मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं सर, जिसमें जो ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी है उनको ज्यादा सीट्स मिले हैं। और दूसरी बात सर, इंग्लैंड में अभी अभी उन्होंने लैब में एक ब्लड सैंपल बनाया है सर, और उससे वो ट्राई कर रहे हैं कि ह्यूमंस में जो हम ब्लड डोनेट करते हैं उसी तरह से उसे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म किया जाए और उसके रिजल्ट्स अच्छी तरह से देखे जाएं। और सर अभी अभी T20 वर्ल्ड कप तो स्पोर्ट्स इवेंट में चल रहा है, और कतार में फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है सर। भी कागज में फेसबुक का नाम ज्यादा हाँ, होते यस हैं, सर, यस इसका सर। कारण फेसबुक क्या में है? क्या कारण सर, है? फेसबुक ने अभी अभी 11,000 एम्प्लॉयज को निकाला है सर, उन फायर्ड किया है एक्चुअली। और सर सेम चीज चल रही है, और बायजूस में भी सेम हुआ है, और हमारे यहाँ अन अकेडमी जो प्लेटफॉर्म है उनके यहाँ, और ट्विटर ने भी ये सब कुछ किया है सर। ये सब हो रहा है अभी न्यूज में। गुड। अभी बॉम्बे सेंसेक्स कितना है जानते हैं? सर एक्चुअली सेंसेक्स सर अराउंड 61,000 के आसपास है, और अगर तो निफ्टी की बात करें तो वो 18,150 के आसपास है। और सुपर बैंक निफ्टी समथिंग 41,800 के आसपास चल रहा है सर। सुपर सुपर सुपर, एक्सलेंट। देयर इज अ न्यूज अबाउट गवर्नमेंट एंड एक्सिस बैंक, क्या चीज है उसके बारे में सॉरी पढ़ा सर, है? मुझे नहीं सर, मैं गवर्नमेंट पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ लूंगा सर उसे। government to exit Axis Bank with 1.55% stake sale, expects to garner 4,000 crore. ठीक है सर, मैं पढ़ लूंगा सर इसके बारे में। या अभी कुछ नीरव मोदी का बारे में न्यूज़ चलता है, वो क्या न्यूज़ है? सर मैंने कल ही शायद पढ़ा है कि नीरव मोदी ने जो यूके के हाई कोर्ट में कुछ तो अपील किया था एक्स्ट्राडिशन के बारे में, तो वो खारिज हो चुका है, और उन्हें शायद एक्स्ट्राडिट किया जाएगा इंडिया में, फिर से उन्हें लाया जाएगा केस करने के लिए, जो केस चल रहा है उनपे, उस फ्रॉड के केस में। अच्छा जी, आपने ये इसका बारे में पढ़ा है? G20 का बारे में क्या न्यूज़ है? सर G20 के बारे में मैंने हाँ कल ही पढ़ा था सर, उसमें न्यूज़ में ये आया है कि जो इंडिया है वो प्रेसिडेंसी संभालेगा G20 की, अभी आने वाले ईयर के लिए सर। हम्म, अच्छा जी। प्रहलाद जोशी कौन है जी? प्रहलाद जोशी, आई थिंक मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कोल और समथिंग। कोल कोल सर, कोल, राइट। हाँ, मिनिस्टर ऑफ इन चार्ज ऑफ कोल। गुड, वेरी नाइस। देन स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए कंट्रोल करने वाला अथॉरिटी कौन है?
सर सेबी कंट्रोल करता है सर, स्टॉक एक्सचेंजेस को मेनली। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कंट्रोल करने वाला कौन है? सर इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेटर सर IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गुड। किरण मजुमदार शाह, हुई शी? किरण मजूमदार शो, चेयरपर्सन बायोकॉन इंटरनेशनल। ठीक है सर, मैं पढ़ लूंगा उनके बारे में। She was once richest lady and recently her husband also died. किरण मजुमदार शाह। अच्छा जी। ठीक है सर, मैं केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसको किसको दिया हुआ है इस बार? नोबेल प्राइज, सॉरी ये सर, भी मैं उनके ये नाम भी को रिकॉल ये नहीं कर भी पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा पू, था। पूरा पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री, हाँ फिजिक्स, बिल्कुल सर। इकोनॉमिक्स, लिटरेचर एंड पीस, सब कुछ पढ़ लीजिए, ठीक है? ठीक है सर, पढ़ लेता हूँ अभी। वेरी गुड। व्हाट इज द प्रेजेंट बैंक रेट? बैंक रेट सर, सर एक्चुअली बैंक रेट सर 5.40%। नो, 6.15। ओके सॉरी सर, मैं देख लूंगा उसे, मैंने रेपो पढ़ा था रेट पर याद। कितना? रेपो रेट कितना है? सर रेपो रेट 5.90% है सर। गुड। आईपीपीबी, इसका मतलब क्या है? सर IPPB एक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये बैंक के गवर्नमेंट में लॉन्च किया है जनरली सर। ये जो पोस्ट है अपने, जो ऑलरेडी विलेजेस में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और बैंकिंग किया जा सकता है सर, उसलिए किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। सुपर गुड। वेरी गुड आंसरिंग, यू टोल्ड नाइसली। एंड थैंक यू सर। व्हाट इज एनईएफटी का मतलब क्या है? नेफ्ट सर, नेफ्ट एक ट्रांजैक्शन का टाइप है सर, जिसके द्वारा हम पैसे बेच सकते हैं किसी को भी। और नेफ्ट में सर लिमिट ऐसा कुछ भेजने का, ज्यादा पैसे मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है वो नहीं है, इसलिए वो बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छे काम आता है सर। आपने तो एक्सपेंशन नहीं बोला, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दैट? ओके सॉरी सर, नेफ्ट, नेशनल सॉरी सर मैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉल नहीं फंड। कर पा रहा हूँ, मैं देख लूँ। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर। ओके सर, गुड। सॉरी सर, मैं अब देख लूंगा अब उसे। आपने सुना है आईएमपीएस? हाँ सर, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम और सर्विस। इसमें मैक्सिमम कितना बेच सकते हैं? मैक्सिमम सर, मैं अभी तक रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ फाइव सर। 5 लाख। 5 lakhs, ओके सर, मैं देख लूंगा सर इसके लिमिट्स भी। अच्छा। अच्छा जी, आपको डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस कवरेज कितना तक चलता है? सर पहले वो 1 लाख तक था सर, बट अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट में उससे 5 लाख कर दिया गया है सर। अच्छा जी, पीएमजेजेबीवाई में कितना कमीशन देना पड़ता है अभी, प्रीमियम? सर प्रधानमंत्री फसल बीमा नो योजना नो, में जो है, फसल ಇಲ್ಲ, जेजेबीवाई। फसल ने, ओके JJBY, ओके सर, JJBY में प्रीमियम अभी अभी बढ़ा दिया गया है सर, पहले कुछ तो 12 रुपीज 436। था शायद। 4, नो 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 नो, 436 430, करके। 436। एंड ओके सर, मैं देख पीएम लूंगा सर। पीएमएसबीवाई ओनली 20 रुपीज। ओके सर, मैं देख लूंगा सर इनको फिर से एक बार। वेरी गुड, बेस्ट विशेस, यू आर ठीक डन है वेल। सर। विच डेट इज योर इंटरव्यू? सर 16 नवंबर को है। You are doing very well, no problem. You please थैंक यू read सर। and follow the interviews I'm posting, and also यस सर। go through Olive Board materials, Banker Zada material, questions asked so far. सब prepare कर बिल्कुल सर। दीजिए. You can do very ठीक है well. सर। Best wishes. थैंक And after यू सर। interview, please send the questions to me to WhatsApp or ओके सर। through our group. Okay? सर कुछ डाउट्स है सर मेरे। बोलिए। सर सर ब्लेजर पहनना ठीक रहेगा सर इंटरव्यू के लिए, वो ओवर ड्रेस तो नहीं हो जाएगा ना सर? नहीं नहीं, इट्स ओके। आजकल तो थोड़ा ठंडा भी चलता है ना, हाँ सर है, ठंड है तो थोड़ी। यू कैन वेयर अ ब्लेजर, नो प्रॉब्लम। और मेरा इंटरव्यू सुबह ही है सर, 8:30 बजे बट रिपोर्टिंग टाइम। प्रोबेबली आरआरबी में उतना कंपलसरी नहीं है। आप तो फुल आर्म शर्ट पहन के, टाई पहन के, शू अच्छा से पहन के जा सकते हैं। बट आपको ब्लेजर डालने से बढ़िया होगा, मालूम होने से आप कर सकते हैं, क्योंकि
उनको मन में ये रहेगा that you are giving more importance for this interview. समझ गया? ओके सर, चलेगा। और आप, सर आपको ये सब क्वेश्चंस पूछेगा। Will you go if you get a job in IBPS? आप बोलिए मत, no, I will not go नहीं if I सर, get नहीं जाऊंगा। no, I am more happy in serving in Maharashtra. ऐसा बता दीजिए। RRBs, राइट राइट। ओके, और सर, और एक बात सर, ग्रूमिंग के बारे में सर, क्लीन शेव करके जाओ कि थोड़े ट्रिम करके जाओ ठीक से? क्लीन शेव करके जाइए प्लीज। ठीक है सर, चलेगा। डन थैंक सर। यू, थैंक यू सर। बेस्ट थैंक यू सर। विशेस। But you थैंक यू did सर। well. 9 out of 10. थैंक यू वेरी आप मच सर, मैं आपने जो कुछ पढ़ा है सर पढ़ आपने लूंगा सर। आपने कुछ आंसर नहीं किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जो कुछ आपने बोला है सही बोला है। ठीक है सर, मैं पूरा मटेरियल फिर से पढ़ लूंगा सर, रिवाइज कर लूंगा सबको ठीक से। गुड, बेस्ट विशेस। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।